بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد اسالم۔ ناظرین، خیبر نیٹ ورک بالخصوص K2 ٹی وی ملک کا وہ واحد چینل ہے جو گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتا چلا آ رہا ہے، اور یقیناً احوال گلگت بلتستان کے ذریعے سے ان گنت اور بے شمار مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بیشتر مسائل حل ہوئے ہیں، اور آج بھی گلگت بلتستان کو درپیش جو مسائل ہیں اس کی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کے لیے مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہی کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دے دیں۔ 17 دسمبر 2021 کو جو 455 سیٹیں آئی تھی، پوسٹیں آئی تھی، ان میں سے جو 145 NCD کے نام پہ آئے تھے، لیکن جی بی والوں نے سیپ والوں کے لیے اور دوسرے ان کے لیے نوازا ہے۔ تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو حق ہے وہ حق دے دیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ کبھی بھی گھر سے نہیں نکلے تھے کیونکہ ہمارے حق میں کوئی وہ نہیں ہوا تھا، تو اس دفعہ جب ہوا ہے تو وہ بھی دیکھیں، ہمارے حق میں تعاون کریں اور ہمیں اپنا پوسٹ دے دیں۔ اچھا، تو آپ کے پاس ایسا کون سا ٹھوس ثبوت ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے؟ یہ ہمارے پاس یہ سارے ثبوت ہیں، تو ان ثبوت کے ذریعے ہم یہاں تک آئے ہیں، اور بس ہمیں اپنا حق دے دیں۔ آج ہم لوگ یہاں پہ اس لیے حاضر ہوئے کہ ہمارے نام پہ جو پوسٹیں آئے ہیں وہ سیف اور دوسروں کو دے رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ ہمارا اپنا حق دیجیے، ہمارا اپنا حق دیجیے، اور ہمارے 17 دسمبر 2021 کے اسلام آباد سے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے این سی جی اور بیک اسکول کے لیے 445 پوسٹیں آئی تھی، ان میں سے 145 ہمارے نام پہ آئے تھے، تو جی بی والوں نے ہمیں وہ نہیں دے رہے ہیں، اور دوسرے جو سیف وغیرہ ہے ان کو دے رہے ہیں، اس لیے اپنے حق کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر آپ لالا عمل کیا ہوگا؟ ہم یہاں پہ مریں گے اور یہاں پہ جیئیں گے بھی، اگر اپنا حق نہیں یا پھر ہم کورٹ جائیں گے، یہاں پہ دھرنا دیں گے۔ جی ناظرین، خواتین نے بھی جس طرح میل یہاں سراپا احتجاج ہیں، اسی طرح فیمیل بھی جو متاثرین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے سامنے۔ جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب ادھر اکٹھے ہوئے تو ہمیں ہمارا حق دو، بس یہی کہنا۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کردو سے ہے، کردو حلقہ نمبر 2 سے۔ آپ کا؟ میرا گزر سے ہے، حلقہ نمبر 2۔ ہم لے کر رہیں گے اپنا حق سے۔ آپ کا تعلق کس ضلع سے؟ نگر سے نگر سے۔ یہ آپ کا تعلق؟ میں گزر سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمارا حق دو، اور ہم اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں گے، انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ میں یاسین سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارا حق چاہیے ہمیں۔ آپ کا کتنا سال ہو گیا؟ تقریباً 6 سال ہو گئے جی۔ 6 سالوں سے محکمہ تعلیم نے کیا کہا؟ تو بس ہم یہ صرف 8,000 روپے پہ ہی کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں، بس ادھر ابھی ہاں بھی وہ بھی ختم ہو گیا ہے، بس جون سے وہ بھی بند ہے، ہم بس ڈیلی خدمت کرتے ہیں۔ سر، میرا تعلق کردو بلتستان سے ہے۔ میں 2013 سے NCD کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ شروع میں 6 مہینے تک ہمیں 2,500 تنخواہ دیا، ہم خاموش رہے۔ اس کے بعد ہمیں 5,000 سیلری ملی۔ اس کے بعد ہم چلو ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہمارے ساتھ اس طرح کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمیں وعدہ کیا 8,000 ملے گی، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، اس طرح فنڈنگ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمیں بعد میں 5,000 سیلری دیا۔ ہم 5-6 سال تک 2016 تک ہم اسی سیلری پہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد 2016 کے بعد ہمیں 8,000 تنخواہ مل رہی ہے۔ اسی پہ ہم نہ کبھی ہم نے اسکول بند کیا ہے، نہ ہم نے کبھی کوئی احتجاج کیا ہے، ہم ایمانداری سے کام کر رہے تھے اس وقت تک۔ تو ابھی جو اس دن جو لیٹر آیا اس پہ ہمیں خوشخبری ملی کہ اس طرح سے سیٹیں آئی ہے آپ لوگوں کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہہ کے، پھر ہم خوش ہو گئے۔ بعد میں یہ سن کے ہمیں بہت دکھ ہوا کہ آپ لوگوں کا حق چھین کے دوسروں کو دیا جا رہا ہے، تو ہم اسی حق کے لیے آج روڈ پہ آئے ہیں سر۔ یہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں بھی اس NCD کے ادارے سے تعلق رکھتی ہوں، اس قدر سے آئی ہوں میں اچھا جی، ہم اپنے حق کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ میرا تعلق دیامر گور آباد سے ہے۔ میں NCD کے ساتھ 2013 سے کام کر رہا ہوں، اور 17 دسمبر 2021 کو یہ اسلام آباد سے کریشن ہو کے ہمارے نام پہ 455
पोस्टें आई है। जब वज़ीर-ए-आज़म इसका दुम आया था, उसने ऐलान किया था, उसके बाद जाके ये हमारे नाम पे क्रिएशन होकर आई है। 455 310 बेसिक के नाम पे आई है, 145 हमारे बाई नेम फिगर ना ऊपर है ना नीचे है, बाई नेम आए। हम अपना आड़त समझते हैं। और इसके बाद कई टाइम हम एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मिले, चीफ सेक्रेटरी से भी मिले, उन्होंने भी अपनी ज़बान से इकरार किया कि ये पोस्टें एनसीडी और बेसिक की हैं 455 पोस्टें। लेकिन दरमियान में एक लेटर ये भी फाइनेंस से निकला, उसमें उबलिग हो के सेब का भी नाम दाखिल किया गया। इसके बाद कुछ लोग जो अनासिर एजुकेशन में बैठे हुए हैं वो अपनों को नवाजने के लिए हमारी हक को छीनना चाहते हैं। लेकिन ये दौर वो नहीं है जो पुराने स्टोन की एज में जो एक की राइट छीन के दूसरों को दे रहे थे। लेकिन ये दौर आज वो नहीं है। जो छीनना चाहे वो छीन नहीं सकते हैं। गरीब तो है लेकिन अपने हक के लिए हम मर मिलने के लिए तैयार है, लेकिन अपना हक किसी को देने के लिए ये तो हम अपना अड़त समझते हैं। 145 बाई नेम हो के आई है। किसी ने आज तक हम किसी भी दफ्तर में गए हैं वो कहते हैं ये आपका हक है, राइट है, आपका हक है, मिलेगा। आप कोर्ट पे जाओ, रोड पे जाओ, हमारा हक है वो मिलेगा। लेकिन हम ये कहते हैं हमारे बच्चों की तालीम भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम स्कूल बंद करके जहाँ एहतिजाज करेंगे, कभी रोड पे आएंगे, कभी चौक पे आएंगे, तो उनका भी मुस्तकबिल का मसला है, उनका तालीम भी ख़राब होगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर आला साहब से भी पहले मिले थे, उसने कहा था पोस्टें 1455 आई है, 1000 पोस्टें हैं, उनमें से दे के इस इशूज़ को ख़त्म करें। लेकिन हमारे कुछ लोग बैठे हैं एजुकेशन में, वो सारा सिस्टम को ख़राब करना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। वैसा जो इनसे बैग से वो सेव करके दाखिल करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर उनके फिगर में आते 336 अगर उनके फिगर में आते तो हम कहते हाँ उनकी फिगर में है, उनको दे दिया। इसके बाद अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामाबाद से लेटर हैंड टैगिंग का लेटर भी आया है। इसके बावजूद बहाने कर रहे हैं वहाँ से हैंड टैगिंग नहीं हुआ है। वो हैंड टैगिंग क्या होता है उसमें ये देखो लेटर साफ़ी हजरात, पहले लेटर ये आया है 1455, इसके बाद नीचे देखो 455 फॉर नॉन फॉर्मल एंड एनसीडी स्कूल्स आए हैं। इसके बाद जहाँ से जो प्रपोजल किया है वो ये है 145 अलग बिल्कुल बाई फिगर है। इसमें 145 आगे बजट भी दिया हुआ है, नीचे सेप और बैक्स के 700 पोस्टें हैं, ये अलग दिया हुआ है। हम इसको अपना अड़द समझते हैं। इंसाफ जो इदारे हैं, इंसाफ हम तो कोशिश करते हैं फितना फसाद न हो। जहाँ हमारे साथ आपने देखा है लेडीज भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी उनके साथ हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों से रात 3 बजे निकले हैं, बाज कल निकले हैं, यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं यार? ये हमारा हक है, हमें हमारा हक दिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरों का हक छीन के हमें दिया जाए, हम ये कहते हैं हमारा हक दे दिया जाए। जो 145 हमारे नाम पे आई है और हमें ये दिया जाए। और हम ये नहीं कहते हैं किसी की हक एनसीडी बैग्स को नहीं करो, हम नहीं कहते हैं सबका हक है, सबको करो। वज़ीर आला ने ये भी कहा था कि पोस्टें हैं इसको डिग्रेड करके नो स्केल करके सबको करो। लेकिन कुछ लोग यहाँ नहीं चाहते हैं, पता नहीं कि जी भी वालों को क्या समझते हैं, या हमारे कुछ लोग हमें तंग कराना चाहते हैं और हमें डिस्टर्ब कराना चाहते हैं और हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। लड़ाने से क्या होगा? फितना फसाद होगा, इलाके में बदअमनी होगी और तालीम ज़ाया होगी बच्चों की। हम भी जहाँ कभी रोड पे होंगे, कभी चौक पे होंगे, कभी कोर्ट पे होंगे, तो क्या फ़ायदा? इसलिए हम जो रिक्वेस्ट करते हैं आला हुकाम से, वज़ीर आला साहब से और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, उनको फिल फॉर हमारे सीटें हमें दे के हमें रेगुलेट किया जाए। आप लोगों को पता है 8,000 रुपये से महीने का आटा भी बराबर नहीं होते हैं। वो भी 3 महीने से वफाकी हुकूमत ने हमें बंद कर दिया है कि हमने आपको जीबी के हवाले किया है। अभी जीबी की जिम्मेदारी है, जो करना है वो करे। अगर वो 8,000 भी न मिले तो हम क्या करें? घर में लड़ाई करने से हम ये समझते हैं बेहतर होगी। रोड में कहीं लड़ाई करेंगे, कोई खुदकशी होगी, कोई किसी को मारेंगे, खुद मर जाएंगे, तो फिर ये मसाइल वो नहीं तो होगा। महंगाई में 8,000 10,000 से आपका काम चलता था? चलता तो नहीं था सर, बस समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एज यू नो। ये लोग समझते हैं शायद हम तो ये समझते हैं ये टीचर का शोबा जो है ये एक अच्छा शोबा समझते हैं इसको।
لیکن آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ جو نظر انداز کر رہے ہیں ہمیں، یہ نہیں سوچو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے جو شعبہ ہے ایجوکیشن تعلیم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم بھی جانتے ہیں کسی کو مارنا، کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، سب کچھ جانتے ہیں. یہ نہیں سوچو ہم سب کچھ جانتے ہیں. اپنا حق چھین کے بھی لے سکتے ہیں. اینٹ کا پتھر جواب سے دینا ہمیں آتا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں یہ شعبہ ہے اس کی رسپیکٹیبل سمجھ کے ہم کسی کے ساتھ وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے ہیں. ہمیں ہمارا حق دیا جائے. آپ جانتے ہیں یہ دور وہ نہیں ہے. The mighty ocean is make little drops of water. The mighty sand is land little grains of sand. قطرے بن کے سمندر بن جاتے ہیں. یہ لوگ ہمیں نظر انداز نہ کرے. جب ہم سمندر بن جائیں گے یہ نہیں سوچو. یہ 145 سے ہمارے ساتھ سکول کے بچے ہیں، گاؤں کے سارے کمیونٹی والے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. چلاس سے لے کے خنجراب تک سارے روڈ پہ آئیں گے ہمارے ساتھ. آپ یہ نہیں سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم آج اسمبلی گلگت بلتستان اسمبلی کے دروازے میں آپ آئے ہیں، تو آپ اسمبلی سے کیا چاہتے ہیں اور کتنے دنوں کے اندر آپ اپنا یہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہم تو یہ چاہتے ہیں سر، ابھی فوراً ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ان کے ہماری پوسٹیں، ہم نے ایجوکیشن سیکرٹری سے ملاقات کیا 455 پوسٹوں کے حوالے سے. اس نے کہا سب کو ہمیں کرنا ہے، اس کے بعد جو بچتے ہیں پھر دیکھیں گے. تو ہماری پوسٹوں کو کسی کو دے کے بعد میں دیکھنا، یہ کوئی کس قانون کے مطابق یہ دے رہے ہیں؟ تو آپ کوئی ٹائم فریم دے رہے ہیں کہ کتنے دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے؟ ٹائم فریم یہ نہیں ہے. 22 تاریخ کو ان لوگوں نے سب کی ویریفیکیشن شروع کیا ہے. ہم کہتے ہیں اس ویریفیکیشن کو روکو. چیف ایجوکیشن سیکرٹری نے ہی کہا تھا کہ ہم تینوں کو بلایا تھا، بلا کے اس نے کہا تھا کوئی فارمولہ دے دو، اس کے تحت ہم سب کو ریگولر کریں. لیکن سب والے درمیان میں نہیں آ گئے. ہماری میٹنگ میں 2 دن ہم نے کوشش کیا، کیونکہ ان کے پیچھے گورنمنٹ کے لوگوں کے ہاتھ تھے. انہوں نے کہا ہمیں آپ کو کرنا ہے کہہ کے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں دے دیا. تو ابھی چیف سیکرٹری ایجوکیشن سیکرٹری سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں فوراً ہماری پوسٹوں کو ہمیں دے دیا جائے. اگر کسی کو دینے کی کوشش کیا تو حالات کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. آگے صدر صاحب بات ان کریں. متاثرہ اساتذہ کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی تو ہم اپنا حق چھین کے لے لیں گے، اور یہ حق چھیننے کے حوالے سے یہ روڈ سے لے کر کورٹ تک کی باتیں کر رہے ہیں. تو گلگت بلتستان اسمبلی کے دروازے میں یہ آئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے اراکین، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور باقی جو ذمہ دار سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کے جو مسائل کی جو الجھی ہوئی گتھی ہے اس کو کس طرح سلجھاتے ہیں. سابق رکن اسمبلی مشیر آفتاب حیدر صاحب کے ساتھ. سر، آپ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات وفاق کے ساتھ کرنے میں اور نہ کرانے میں اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. چونکہ آپ نے دیکھا ہے، میں نے یہاں پہ جب سے میں یہاں پہ الیکشن کیا، 4 میں نے الیکشن کیے یہاں پر ہوتا ایسا ہے کہ یہ 7 الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہے. ایک تو یہاں پہ لوگوں کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے کہ مرکز میں ان کی حکومت ہے، یہ ویسے بھی جیت جاتے ہیں کہ اس طرح سے ایک رجحان بن جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور باقی افیکٹو بھی ہو جاتے ہیں. مرکز میں جب حکومت ہوتی تھی وہ انتظامی لیول سے یہاں آ کے جھوٹے اعلانات اس طرح سے لوگوں کو لالچ دے کر اس طرح سے مطلب رنگنگ ہے، یہ ایک مطلب وہ جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. دوسری بڑی نقصان یہ ہے کہ یہاں گلگت بلتستان میں سیاسی جو کچھ لوگ ہیں وہ صرف بس اس طرح سے یہاں پہ مطلب کوئی سیاسی کمپٹیشن ہوا ہی نہیں ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مرکز میں جو حکومت آتی ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان سے ٹکٹ لے کر ہر آنے والی جو مرکز میں گورنمنٹ جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ ادھر جاتے ہیں، جن کا کوئی نظریہ وظریہ نہیں، کسی بھی طریقے سے انہوں نے اسمبلی میں جانا ہوتا ہے. اس سے نقصان ہوتا کیا ہے کہ مطلب ریئل مطلب لیڈرشپ گلگت بلتستان میں ملتی نہیں ہے.
इस हवाले से वकला साहिबान की हम राय लेते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अगले इंतखाबात वो कब कराना चाहते हैं, कब मुनासिब समझते हैं, तो इस हवाले से इनका पॉइंट ऑफ व्यू हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मफादात को मद्देनज़र रखते हुए और उनके दरमियान जो मुतालबा जो 30-40 सालों से जब से पाकिस्तान आज़ाद हो उनका कोई आइनी हुकूक के हवाले से हमें शामिल करके आइन में शामिल करके अगर कोई उभरी आइनी सेटअप देके अगर हमें वफाक के साथ इलेक्शन होते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सियासी होल्डर्स को मुत्तफ़िका इस पर इलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने के लिए कोई ड्रामा रचाने वाली कोई तरीक़ाकार हो तो इसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको रिजेक्ट करेगी और अवाम भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो हमारा इसका दो टोक मौक़ूफ़ है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के मफादात के लिए अगर कोई बात होती है या सेटल होता है तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सरज़मीन गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले अवाम और इनके बासियों की मुस्तकबिल और कमिंग फ्यूचर के लिए जो बेहतर होता है, हम अवाम की तरफ से भी यही मुतालबा है और हुकूमतों से भी मुतालबा। फ़ैसले तो हुकूमतें करती हैं, पब्लिक की राय जाती है, तो जो अवाम के लिए बेहतर होगा वही होना चाहिए। अलबत्ता ये है कि अगर थोड़े से आप पास प्रैक्टिस या पास हिस्ट्री देखें तो एक शेर के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, ज़माना भर का ये कायदा है हिजन का खाना उन्हीं का गाना। साबिक सूबाई वज़ीर क़ानून मारूफ कानूनदान औरंगज़ेब एडवोकेट साहब के साथ हम मौजूद हैं। सर मैं शो में आपको वेलकम कहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात वफाक के साथ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हर जगह पे एक डिबेट लगी हुई है, तो आप क्या चाहेंगे कि क्या गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात वाकई वफाक के साथ होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो चूँकि माजी में अबूरी आइनी शोबा भी ज़ेर बहस रहा है, तो अबूरी आइनी शोबे के साथ होने चाहिए या वैसे ही होने चाहिए? इस पर भी थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा। और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के दरवाज़े में NCHD के असातिज़ा जो है वो यकीनन आपके दौर में भी इशू चलता रहा, तो वो धरना दिए नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया ईसा साहब आपका। मैं स्ट्रेट अवे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड करूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान ने अपना इस हवाले से कि वफाक के साथ इलेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो हम वाहिद जमात है जिसने इसको रीज़न्स के साथ वजूहात के साथ हमने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के अंदर अपना जवाब तहरीरी तौर पे जमा करवा दिया है। ये वफाक के साथ इलेक्शन ना होने की वजह से जो टेन्योर का डिफरेंस आता है और वहाँ पे नीचे अगर दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है तो उससे एक तो वर्किंग रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, दूसरा आपकी जो सूबे के अंदर किसी भी जमात की हुकूमत होती है उसको डिलीवर करने में, गवर्नेंस करने में, लोगों के मसाइल हल करने में बहुत बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है और ये हकीकत है। वफाक के साथ इलेक्शन होने की वजह से एक और फ़ायदा ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं जो अपने अपने मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, लोगों को अपने मैनिफेस्टो पे इनवाइट करती हैं, उनके लिए निस्बतन आसान होगा। एक सियासी माहौल जो होगा वो मजबूत होगा, लोग सियासत करेंगे सियासी जमातों के अंदर रहते हुए, ना कि वो ये देखेंगे कि वफाक में जिसकी हुकूमत है यहाँ उसकी गवर्नमेंट बननी है। तो वो जो वोटर और सपोर्टर होता है जमात का, और जो हमारी एक प्रेस प्रैक्टिस हमने देखी है कि जो अपने हलके के जो ज़्यादा इलेक्टेबल्स होते हैं वो वफाक की तरफ देखते हैं और वो अपनी जो एफिलिएशंस होती हैं सियासी जमातों के साथ वो चेंज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सियासी जमातों का ढांचा आज तक कमज़ोर रहा है, सियासी जमातें मजबूत नहीं हो सकी। PTI की वफाक में गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब ये अबूरी आइनी सूबे का ड्राफ्ट बनाया और 26वीं आइनी तरमीम जो है इधर की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भिजवाई कि अब अपने असेंबली से इसको वेट करवाएं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हर्डल क्रिएट हुई वो एक बात की थी कि जनाब हमारा जो टेन्योर है जो इस असेंबली का उसको जो है ना किसी तरह से सिक्योर किया जाए, हम 2025 तक जो है ना वो अपने आप को असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव हम बैठे रहें, जिसकी वजह से वो एक डेड लॉक रहा जिसने 2 से 3 महीने इंतहाई अहम इस कौम के ज़ाया कर दिए। अब जो तीसरी बात आपने ये जो कोई टीचर्स असातिज़ा की बात की है, नहायत अफसोसनाक है। इसलिए अफसोसनाक है कि अवाम जब उनके मसाइल हल नहीं होते हैं, गवर्नेंस में कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ होती हैं, तो फिर लोग अपना हक हासिल करने के लिए या अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं या आइनी तरीके से जमहूरी तरीके से एहतजाज का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छी तरह याद होगा इस सलीम साहब, आप इसको रिपोर्ट करते रहे हैं, जब बहुत बड़ा एक धरना हुआ था मेरी शाह साहब के दौर में सैप स्कूल टीचर्स का, उसमें ये बैक्स NCHD सारे शामिल थे और उसमें कमिटमेंट
हालांकि असम्बली मेंबर नहीं थे हफीजुर रहमान साहब, लेकिन उसके बावजूद एक वादा किया गया था कि अगर हमें हुकूमत मिली तो हम आपका मसला हल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैप स्कूल रेगुलराइजेशन एक्ट को असम्बली से पास किया। हमने लगभग 780 असातिज़ा की क्रिएशंस ला के, जो कि किसी भी सूबे में नहीं है, हमने GB के अंदर उसको एजुकेशन के अंदर मर्ज करवाया, उनको रेगुलर किया। अब ये अभी रिसेंटली जो क्रिएशंस आई हैं वो चिट्ठी मैंने देखी है, उस चिट्ठी में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि 455 पोस्टें GB की सूबाई हुकूमत, GB गवर्नमेंट जो है वो NCSD और बैक्स और ये जो असातिज़ा रह गए इनके लिए अलग से रखेगी, ताकि इनके जो बकाया जो साथी रह गए हैं वो इसमें जम हो जाएं। तो मेरे पास 2-3 रोज़ कबल एक वफद डेलीगेशन हफीज़ साहब क्योंकि बाहर हैं तो उन्होंने मेरे पास भेजा था, उनसे रब्ता कहीं किया था, तो मैंने उनका जब केस को स्टडी किया उसमें सिंपल वो यही कह रहे हैं कि अब दोबारा से एक नोटिफिकेशन सेक्रेटरी एजुकेशन ने जारी किया है जिसमें उन्होंने फिर रिमेनिंग सैप की बात की, NCSD और बैक्स को फिर छोड़ दिया है, जबकि वफाक से क्रिएशन 455 का फिगर आप चेक कर ले वो उनके लिए आई है। अब वो फिर दोबारा सैप की तरफ उसको कर रहे हैं जिसमें बहुत से ज़्यादा लोग जो है ना ओवर एज हो चुके हैं। तो मुझे अफसोस भी है और मैं असम्बली मेंबरान जो मौजूद असम्बली मेंबरान इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब हाउस के बाहर आपका कोई धरना होता है, लोग जो एहतजाज करते हैं, तो कम अज़ कम उनको बुलाएं, उनके चीज़ को असम्बली फ्लोर पे डिस्कस करें। आपको इसलिए असम्बली फ्लोर पे भिजवाया गया है। हमारे 5 साल दौर में हमने ऐसे बहुत से धरने, बहुत से इश्यूज़ को देखा, लेकिन हम अवाम के लोग थे, अवामी लोग थे, हम अवाम के पास चले जाते थे, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। तो इनका इशू बड़ा जेन्युइन है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो जो लेजिस्लेशन हुई है उसके ऊपर इस पर इम्प्लीमेंट करके इनके मसले को हल किया जाए। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्री है। सीनियर कानूनदान मोहम्मद फारूक उमर साहब के साथ हम मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात वफाक के साथ होने चाहिए या मौजूदा असम्बली को 5 साल पूरे करने दिया जाए, इसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर आप इस हवाले से क्या कहें? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्तन फ़वक्तन टाइम लेके हमारी तरफ आते हैं और हमारे वकला के राय भी लेते हैं, और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस इशू को उजागर करने में आपका बहुत बड़ा रोल है, और मैं आपको, आपकी पूरी टीम को मैं सलाम भी पेश करता हूँ। 1 सेकंड ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वफाक के साथ होनी चाहिए। ये तो शुरू से हमारी इसमें स्ट्रगल भी रही है, हमारी तहरीक भी चली है, ये वफाक के साथ इसके इलेक्शंस होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज से पहले किसी ने इसकी तरफ कोई तवज्जो दिया नहीं है। नून और पीपल्स पार्टी के पिछले तकरीबन 30 सालों से, बल्कि 70 सालों से यहाँ पे हुकूमत रही है, उनको ये सोचना चाहिए था। आज वफाक में उनका रजीम चेंज हुआ है, अब ये किसी भी सूरत ये दोनों मिल के इस सिस्टम को लपेटने के चक्कर में है। हमने लोगों के जब कैंपेन के दौरान हमने लोगों के साथ वादा वहीद हमने किया है, बहुत सारे मामला हमारे पाइपलाइन पे है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। 5 साल का मैंडेट हमारे अवाम ने हमारे नुमाइंदों को दे के असम्बली भेजा है। 5 साल का मैंडेट हमें पूरा हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। ये नियतों का फतूर है, ये अंदर से कोई कुछ और गेम यहाँ पे चल रही है। ये मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग हैं, इनके साथ कोई और भी हो सकता है। मैं इशारतन आपको आप समझ गए होंगे, इनके कोई बड़ी ताकत भी उनके पीछे खड़ी है। वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के ये PTI की गवर्नमेंट इसको लपेटा जाए। इसकी इजाज़त न आवाम देगी, न हम उनको इजाज़त देंगे। इस हवाले से कल ऑन बिहाफ ऑफ स्पीकर साहब जो हाउस ऑफ द कस्टोडियन है, उनकी तरफ से मैंने 110 का एप्लीकेशन सुप्रीम अपील कोर्ट में मैंने फ़ाइल की है। उसके 10 तारीख फिक्स हुई है डेट, उसके अंदर मैंने पिटीशन देख के मैंने ज़रूरी फरीक बनने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे आर्गूमेंट्स होंगे, हमारा पूरा मौक़िफ़ मेरा पार्टी का पूरा मौक़िफ़ इंशाल्लाह वहाँ पे हम उसको दे देंगे। तो बाकी इंशाल्लाह देखा जाएगा जो भी होगा। तो हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वफाक के साथ होने से पहले सबसे पहले वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, PDM की गवर्नमेंट है, ये आईनी सूबा दे दें। उसके बाद ये सेकंड चीज़ों पे हम फिर जाकर हम मिल बैठ के बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात वफाक के साथ कराने में कोई हर्ज नहीं है, ताहम इनका ये मानना है कि उबूरी आईनी सूबा अगर वफाकी हुकूमत दे देती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कुछ दिए बगैर जो कुछ है इसको छीनना, ये इनके ख्याल में इंसाफ पर मबनी नहीं है। तो नाजरीन, हमने आज के प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के सामने जो मुतासरा असातिज़ा का जो धरना था उस हवाले से हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल किया। हमने अपोजिशन लीडर की जो गुफ्तगू थी वो भी हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, और हमने साबिक सूबाई वज़ीर क़ानून औरंगज़ेब एडवोकेट का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर कानूनदान
محترم محمد فاروق عمر صاحب کا بھی اس حوالے سے موقف لینے کی کوشش کی۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو ارشاد اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔